Shri Ganesh across the globe, wherever you are. We wish you a green morning, green afternoon, and green evening. Yesterday, we all enjoyed wonderful Republic Day, Basant Panchami, lot of festivities, lot of colors, and you saw rocking, wonderful India rising in all directions, doing extremely well. We are proud to be an Indian. We are proud to be in India. We are proud to be part of this particular civilization. And all of us, those are moving ahead today, our brothers and sisters across the globe, non-resident Indian diaspora in different countries, different time zones, different conditions, different jobs, different works, different profiles. All of us, let's move together. You recall some time back, the Honorable Prime Minister of India, when he was visiting abroad, he told our NRIs, non-resident Indian, जब भी आप भारत आएं, अपने साथ कम से कम 5 लोगों को बाहर से भारत में लेकर आएं. That was the agenda and that was the slogan which Honorable Prime Minister of India gave to the non-resident Indian, because our chamber deals directly, deeply, wholeheartedly, too much with the non-resident Indians. So that is the first slogan we are taking. कोई भी भारत विजिट करने आए, अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेकर आइए और सोचिए कि टूरिज्म किस डायरेक्शन में जाएगा. Because tourism adds so much to the world, to India. When you talk about GDP, economy, infrastructure, employment, entrepreneurship, startup, education, whatsoever we take into consideration, आज हम focus करेंगे domestic tourism. That means people taking trip, people taking journey, people traveling within India from one state to another state, from your home place to other places. That is called domestic tourism. अब सवाल ये पैदा होता है, अगर आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन, dances, music, singing, costumes, colorful, whatever you call, everything is a part of tourism. It is linked with the tourism. तो अगर हम एजुकेशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट कोई भी पढ़ते हैं, why not domestic tourism, India's rich cultural heritage, our tradition, our values, our civilization, our ancient values, why it should not be integral part of our domestic tourism, being a part of school education curriculum. हम बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ते हैं, हम बच्चों को बाकी चीजें भी तो बताते हैं. क्या किसी ने पूरा भारत ट्रैवल किया है? I come from the armed forces background and I was fortunate enough to work with the Ministry of Tourism, Government of India, as well as in the institution with the ministry. अगर मैंने length and breadth try किया, फौज से भी, tourism से भी, और अगर हम पूरा भारत नहीं देख पाए, क्या कोई ऐसा है? YouTube पर लिखिए, अगर आपने पूरा भारत ट्रैवल किया है, आपने सभी राज्य, सभी स्टेट्स, सभी यूनियन टेरिटरीज, you have gone through India in all seasons and you have enjoyed all cultural festivities of India right over here to us, we would consider that you are a very special, privileged soul who has seen entire India. And ladies and gentlemen, this year also is very important because the G20, which has come to India, India's lap, India's responsibility, Bharat 2023, that is wonderful Bharat. Let's move together. Friday, 27th of January, 2023, we extend a very warm welcome to all of you. Thank you very much for being a part of this journey. आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे. अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म को ठीक से, अच्छे से और सारी जगह सबको रीजनल इम्बैलेंसेस को रिमूव करने के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए एक ही यंत्र है, ब्रह्मास्त्र है, डोमेस्टिक टूरिज्म. और अगर वो हमारी शिक्षा की प्रणाली में, हमारी कौशलता में, स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में आ जाता है, कैन यू बिलीव? Why not all the travel trade officials, everybody whosoever is in travel trade business, whosoever is in hospitality, tourism, wherever you are,
Why not we all should take up this campaign together that the domestic tourism, particularly, it should not be taken separately. Rather, it should be integral part of our school education curriculum. That's what is the agenda we are talking today. So, ladies and gentlemen, hearty welcome to everybody. And we are a link between India and our brothers and sisters, 32 million Indian diaspora abroad and the corporate sector. Vasudhaiv Kutumbakam, all of us together moving. Hearty welcome from International Chamber for Service Industry. आइए चलते हैं अपने इतिहास के पन्नों में. आपको याद होगा जब हम लोगों ने एंजॉय किया महाभारत सीरियल, उस समय आता था मैं समय हूं, और समय कैसे उस पूरे सीरियल को वीव इन करके अच्छे से आगे लेकर चलता था. हमारे वेदों की जब हम बातचीत करें, इन वेदों का मनन कैसे हुआ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब चीजों की जब हम बातचीत करते हैं, इस ओल्ड सिविलाइजेशन की बातचीत करते हैं, एंशिएंट इंडिया और सिविलाइजेशन की बातचीत करते हैं, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन. आवर कल्चरल हेरिटेज, आवर ओल्ड सिविलाइजेशन and our values, what exactly India was. There was a time when India gave so much to the whole world, and there was so much was traveling from India world over. We still look at Nalanda University, Takshila, Vikramshila. Indians are permanently disconnected from the wisdom of the ancient universities which were destroyed by invasion. कितने दिनों तक लाइब्रेरीज में आग लगी रही थी, कितनी रिसर्च थी, कितनी इनोवेशन थी, कितने विद्यार्थियों का कितना बड़ा स्वामीश, उसके अंदर कितना कुछ उनका ट्रेजर ह्यूमन विजडम था, और महीनों तक आग लगी रही थी उस लाइब्रेरी के अंदर. याद कीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी को, याद कीजिए उन पुरानी यूनिवर्सिटीज को जहां से इंडिया का विजडम, इंडिया की नॉलेज, इंडिया का ट्रेजर ऑफ सिविलाइजेशन, हर तरह की एजुकेशन यहां पर थी. और कोरोना काल में अभी अभी पूरा विश्व जब इससे गुजरा है, तो आपको याद होगा जब हम बातचीत करते हैं और देखते हैं तो बताया जाता है कि 25 मार्च 2020 को, जिस दिन को हम चाहते हैं कि इतिहास में कभी दोबारा ना आए, ऐसा दिन किसी को दोबारा ना देखना पड़े, कंप्लीट लॉकडाउन, एंड टूरिज्म वाज द फर्स्ट बर्ड टू बी शॉट. Tourism is so fragile, it is so dependent, it is so interwoven with so many other departments, ministries, and so many other products and services. Tourism is not in isolation. Tourism हर एक के साथ जुड़ा हुआ है. Tourism हर एक के लिए directly और indirectly. इसलिए tourism was the first bird to be hit and last to recovering. That is something. और उस समय एक कैंपेन चलाई गई भारत की सोच में, such an important campaign, देखो अपना देश. ये कैंपेन क्या थी? आज हम अपने डोमेस्टिक टूरिज्म के इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन के थीम पर आएंगे. उससे पहले आइए बातचीत करते हैं. देखो अपना देश. यू शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया. You should be proud of Indian culture, heritage, art, craft, values, souvenir, and our dances, our music, our costume, our cuisine. Whatsoever India is, so beautiful. Look at this elegant, such a picturesque, देखो अपना देश. Spiritual India, ऐतिहासिक India, vibrant India, dynamic India, and something where you talk about the old civilization, जहां पर yoga, meditation, naturopathy, spirituality, pilgrimage, all that when we take into consideration, something fantastic, amazing. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर कोई कम से कम 15 जगह भारत की विजिट करे. और ये देखिए, इन द फुटस्टेप्स ऑफ द बुद्धा, बुद्धम शरणम गच्छामि. जब हम बातचीत करते हैं, इट इज समथिंग, सच अ ब्यूटीफुल इंडिया,
When you travel Leh and Ladakh, you go to Jammu and Kashmir, you go to Himachal, Uttarakhand, UP, West Bengal, Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and उसी के साथ साथ beautiful northeast part of India. It's amazing. It has got everything for everybody. All seasons are so beautiful. If you see the landscape of India, if you try and work out what all India offers, what all India has got, that is something very important which we have to take into consideration. Ladies and gentlemen, आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतवासी हैं, आप भारत के निवासी हैं, आपका जन्म भारत में हुआ, आपका जन्म एक ऐसी पवित्र भूमि पर हुआ जहां से कितनी सिविलाइजेशन। और ये देखिए, आप बाय एयर ट्रैवल कीजिए, रोड से ट्रैवल कीजिए, ट्रेन से ट्रैवल कीजिए, सी से ट्रैवल कीजिए। आपको याद है रिसेंटली 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रूज भी लॉन्च किया है, 3100 किलोमीटर का, द लॉन्गेस्ट 51 डेज जर्नी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा, पूरी इंडिया को और बांग्लादेश के होते हुए ट्रैवल करेगा। और ये देखिए, वंदे भारत के साथ साथ हमारी कुछ एक स्पेशल ट्रेन इस पूरे टाइम के अंदर, ये आप देख सकते हैं भारत गौरव, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखो अपना देश, नॉर्थ ईस्ट part of India, incredible India, and that is something wonderful. This train going the length and breadth, so many tourist trains have been started, and the other day I was told by my team and my colleagues 29 special tourist trains are going crisscross India, taking millions of tourists from one place to another place. उस कोरोना काल को हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन आप याद करिए, आपके मुंह पर मास्क, N95, उसके बाद कितनी सारी प्रिकॉशंस, किसी को मिलना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, एवरीथिंग कमिंग टू स्टैंड स्टिल। हमारे ट्रैवल ट्रेड का क्या हुआ? हमारे ट्रैवल एजेंट्स, हमारे टूर ऑपरेटर, हमारे टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर, हमारे टूरिस्ट एक्सकर्शनिस्ट, हमारे होटलियर्स, हमारे रेस्टोरेंट ऑफिशियल्स, एवरीबॉडी हैड सो मच ऑफ चैलेंज. They needed lot of hand holding, but dash dash dash, I don't want to get into those details, how much hand holding was given to them, but they are recovering, they're very strong. And देखो अपना देश, जो एक वेबिनार सीरीज भी स्टार्ट की गई थी अप्रैल 14 मकर संक्रांति को 2020 में, and that was the day when this particular series was started. और देखो अपना देश में सबसे पहले कहा गया कि आप बहुत कुछ विन कर सकते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके अलावा भारत में कहीं भी ट्रैवल कीजिए, कहीं भी जाइए, कम से कम 15 लोकेशंस को आप ट्रैवल कीजिए अक्रॉस इंडिया, एंड बाय एंड ऑफ 2022 विजिट करिए इनक्रेडिबल इंडिया। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल पर जब आप जाकर आप एक शपथ लेते, अपने पर्टिकुलर्स भर के सब चीजें कि मैं ट्रैवल करूंगा, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके एक्सपेंसेस मीट कर रही है, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपके बोर्डिंग लॉजिंग के एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। we got to look into those statistics, how many people completed that particular journey and that particular task, और इसके बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलना, इसके बाद आपको एक एप्रिसिएशन भी मिलना। It was launched to provide information on the many destinations and the sheer depth and the expanse of the culture and the heritage of the incredible India. और देखिए, लोगों ने शपथ ली और लोग ट्रैवल किए, और पहले ही कुछ महीनों में कितने सारे लोगों ने लॉक इन करके अपने पर्टिकुलर्स को भर के दे टुक ए प्लेज। इसकी भी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली ट्रैवल्ड इन डोमेस्टिक टूरिज्म विद इन इंडिया besides their own living place and what all they enjoyed. और इसमें बहुत सारे कंपटीशन भी रहे, फोटोग्राफी का था, क्विज थे, बहुत सारे पेंटिंग कंपटीशन थे। ये देखिए, अमेजिंग इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, दैट ऑल। ये देखिए, ये झरने, ये वाटरफॉल, ये ग्रीनरी, ये इको टूरिज्म, ये नेचर टूरिज्म, और ये मोटर बाइक वाले लोग क्रिस क्रॉस इंडिया में जाते हुए एंड ट्रैवल करते हुए और देखते हुए कि भारत क्या क्या आपको दिखा सकता है। ये वो परफॉर्मा था जिसके अंदर आपको एक प्लेज लेना था और आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी थी। ये 15 लोकेशंस को ट्रैवल करने से पहले
और आपने जब प्लेज लिया कि दैट यू विल बी विजिटिंग एटलीस्ट 15 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया by end of 2022। और देखो यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के उन सबको भी लिया गया एंड दैट वाज प्रोसीड फॉर लैंग्वेज सिलेक्शन। जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो भी आप सेलेक्ट करते थे। और उसके बाद लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट रहा, उसके इस तरीके से बहुत सारे कॉन्टेस्ट थे। और जब प्लेज ले रहे थे लोग और ट्रैवल कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहा कि आपके घूमने का खर्चा भी देगी सरकार, ट्रैवल तो कीजिए, भारत तो देखिए, अपनी खूबसूरत कंट्री को तो देखिए। और उसी के साथ साथ बहुत सारे वेब प्रोग्राम्स हुए, क्विज प्रोग्राम्स हुए, वेबिनार्स हुए, जूम सेशन हुए, डेलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस हुई, सेलिब्रेशंस हुई। और इन सब चीजों को जब हम बातचीत करते हैं, इट वाज बेसिकली इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एक्सप्लोरेशन। उन सब चीजों को एक्सप्लोर करना कि इंडिया क्या क्या ऑफर करता है, इसकी डिफरेंट कैंपेन्स। और उसके बाद आपको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेशन भी मिलना कि आपने सक्सेसफुली किस तरीके से, देखो अपना देश, वेबिनार क्विज किया, आपने स्लोगन कंपटीशन किया, पेंटिंग कंपटीशन किया, हर जगहों पर अलग अलग रहा और भाषाओं का संगम था। ये मल्टीभाषी, अगर आपको याद हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों ने बहुत सारी कैंपेन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, और उसी तरीके से बाइसिकल टूर, मोटरसाइकिल टूर, पद यात्राएं, लोगों ने पूरा इंडिया एंजॉय किया। म्यूजिकल इंडिया, वाइब्रेंट इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, इंडिया कॉलिंग। ऑनरेबल जो यूनियन मिनिस्टर है अपने एजुकेशन के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, भाषा संगम इनिशिएटिव। और एक मोबाइल ऐप आया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर मोबाइल के क्विज प्रोग्राम, बहुत सारे गेम्स के हुए, और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया। इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग दिन बहुत सारी चीजें हुई। एंड माई गव जो गवर्नमेंट का था, उसके थ्रू भी बहुत सारा चैनलाइज किया गया। देखो अपना देश, क्या आप देख सकते हैं? जिसने ये पेंटिंग ड्रॉ की होगी, हैट्स ऑफ, ऑसम, such a incredible India. It looks like a canvas, a painting, such a beautiful drawl, and something very interesting which is shown over here. अगर मैं नॉर्थ में ट्रैवल करता हूँ, डिफरेंट जगहों में जाता हूँ, देखो अपना देश में, you got so much to see and so much to explore. अगर मैं साउथ में जाता हूँ, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, समथिंग इंटरेस्टिंग, अमेजिंग विच वाज गिवन। उसके बाद हम वेस्ट इंडिया में जाते हैं, सेंट्रल इंडिया में जाते हैं, ईस्ट इंडिया में जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जब हम बातचीत करते हैं, a heaven on earth with untouched natural beauty, so much to offer and so much to see. Can you see a young chief minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu? देखो अपना प्रदेश, देखो अपना देश। और इन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया, देखो अपना प्रदेश, कि कम से कम ट्रैवल करो, देखो क्या क्या है, कहां कहां पर है। सच अ ब्यूटीफुल, अमेजिंग, रॉकिंग, इस तरीके के इनिशिएटिव। ये देखिए, डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया अवेयरनेस, और इसका प्ले एंड विन, free government certificate and cash prizes. Winners will get free government e-certificate. This campaign also started somewhere on 11th of September, that time, exploring the different facets of India's cultural heritage. ये देखिए, पेमा खांडू जी, उनके साथ किरण रिजिजू जी, और उसके साथ हमारी बॉलीवुड टॉलीवुड सब इकट्ठे होकर यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया को एक्सप्लोर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सप्लोर करते हुए। एंड दिस इज अ बाइसिकल सफारी, दे आर जस्ट टेकिंग ओवर देयर, एंजॉयिंग अमेजिंग अरुणाचल, अमेजिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेलकम टू तवांग। जब आप सेला पास क्रॉस करते हैं, बॉमडिला से दिरांग आते हैं, दिरांग से आप सेला पास आते हैं, सेलापाल से तवांग जाते हैं, आप आगे लूमला, बूमला, यू नो, सो मेनी प्लेसेस यू कैन एंजॉय। अब जीरो में जा सकते हैं, where there's a wonderful music festival which takes place every year near, you know, World Tourism Day. That's in month of September, the last week. ये देखिए, ये क्विज क्वेश्चन है,
If anybody who can spot, आपको थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करना होगा, you will be able to put it. मैंने आपको बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई हैं, अगर आप इस स्लाइड को देखकर ठीक नाम बता सकें कि ये कौन इंसान है जो सामने एक वैली, एक वाटरफॉल और इस चीज को देखते हुए, दोनों बाहें फैलाते हुए, टूरिज्म को प्रमोट करते हुए दिखा रहे हैं, ये शख्स कौन है। इसे ध्यान से देखिए और क्लोजली देखिए, क्लोजअप में देखिए। इफ यू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑन यूट्यूब, यू गेट 1000 रुपीज दिस इवनिंग फ्रॉम अस। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। इफ यू कैन स्पॉट हु इज दिस मैन, आई एम होल्डिंग इट फॉर सम टाइम फॉर यू। देखिए, anybody who can spot which is this place and who could be this gentleman, if you can tell me correctly, you get 1000 rupees this evening from us in this particular webinar. चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनदर अमेजिंग, एक शख्स ने 1000 किलोमीटर सोलो साइकिलिंग एंड ट्रिब्यूटेड टू द नॉर्थ ईस्ट 7 मार्च से 17 मार्च तक संजय बहादुर ने, and that is something amazing, first of its kind initiative taken by Sanjay Bahadur. Can you imagine? This was Fit India, देखो अपना देश, discover Northeast India, something amazing, amazing which was done. और ये देखिए, मैं आपको ईस्ट इंडिया में लेके चल रहा हूं, और यहां पर जहां पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जहां मां दुर्गा की पूजा की जाती है, वहां पर भी एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ कि कौन अच्छी पेंटिंग लेकर आएगा, उसके ऊपर भी फिर दुर्गा पूजा का क्विज भी किया गया यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द ईस्ट इंडिया, एंड इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, सब चीज के ऊपर यहाँ क्विज हुआ, पेंटिंग कंपटीशन हुआ। कैन यू इमेजिन? हर एक चीज को हम साथ लेकर चले। और ये देखिए, कल्चर की जो कॉन्फ्लुएंस की बातचीत करते हैं, ओल्ड हेरिटेज, ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड सिटी, जब हम ईस्ट इंडिया की बातचीत कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस सब का भी एक अमेलगमेशन उस एरिया में हमको देखने की मिला। आजादी के अमृत महोत्सव पर भी आप देखिए, द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म श्री जी कृष्ण रेड्डी, एंड उन्हीं के साथ साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आजादी के अमृत महोत्सव को, इसको भी मनाया गया टूरिज्म के माध्यम से, एंड दैट इज अंडर इनक्रेडिबल इंडिया, समथिंग अमेजिंग। फिर उसके बाद एक पर्यटन पर्व भी मनाया गया। This was also something fantastic which was taken over there. Is something again, देखो अपना देश। आप बाई एयर ट्रैवल करो, बाई रोड ट्रैवल करो, बाई सी ट्रैवल करो, बाई क्रूज से जाओ, बाई किसी भी माध्यम से जाओ, बट भारत को देखो। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल घाट हैं भारत के। ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, और इन सब के ऊपर टूरिस्ट पीपल, दोज आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, वो ऑथेंटिक इंडिया देखना चाहते हैं, रियल इंडिया देखना चाहते हैं। 5 स्टार होटल में सिर्फ वो रहना चाहते हैं जिनको कॉन्फ्रेंस करनी है या बिजनेस टूरिज्म करना है। बाकी लोग एग्री टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, and how can I live healthy? How can I look smart, walk smart, talk smart, enjoy India, explore India, see India, visit India? कुछ भी टर्म आप यूज कीजिए, because tourism goes with everything, and that is something amazing which India has got. कितने सारे घाट हैं, इन घाट्स पर लोग विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, पर्टिकुलर फेस्टिवल के टाइम में, पर्टिकुलर डे में, सन की पोजीशन, उन सबको देखकर बाथ, बेदिंग, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इनक्रेडिबल इंडिया। आप सोच सकते हैं, कुछ लोगों को एंजॉय करने में मजा आता है। हमारे भारत के जो अलग अलग डैम्स हैं, उनमें से 12 बड़े इंपॉर्टेंट बड़े डैम्स हैं। कुछ लोग उन डैम्स को विजिट करना चाहते हैं, दूर पहाड़ी पे बैठकर उस डैम को विजिट करते हैं, उसको देखते हैं, उस डैम में से, क्योंकि पानी, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर यूनिवर्स as well as in our body. Body is also its own universe. तो आप देखिए,
कुछ लोग टॉप 12 डैम्स टू विजिट इंडिया। फिर रोमांटिक हनीमूनर्स, दे गो फॉर बीच टूरिज्म, beach destinations in India, East Coast, West Coast, East and West. Home is the best. When you talk about, when you travel within India, when you go to different places, India is amazing. We have got flora and fauna. We have got wildlife tourism. And over here, look at what nature has made such a beautiful birds, and ecotourism has got tremendous potential. You travel anywhere in India, ecotourism, nature tourism, green tourism, wildlife tourism, rural tourism, farm tourism, agri tourism, कुछ भी ले लीजिए, flora and fauna tourism, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, लेकिन विजिट कीजिए, because this is all a part of ecological. इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे पर अपना रीथिंकिंग टूरिज्म एक बुक लॉन्च किया था, जो हमारे वेब पोर्टल पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रीथिंकिंग टूरिज्म पोस्ट पैंडेमिक। इसकी भी हमने बातचीत की थी कि हाउ टू मेक एजुकेशन एंड स्किल रेलिवेंट फॉर टुमारो, पर्टिकुलरली जिसके अंदर हमने वोकेशनल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, वोकेशनल टीचर, इन सब की बातचीत की थी। और ये इसके 15 ब्यूटीफुल चैप्टर, जहां पर हम जर्नी लेकर गए आपके फ्यूचर ट्रेंड्स इन टूरिज्म में भी, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन में, कि अमृत काल को लेकर हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए 2047 तक, 2047 में भारत का टूरिज्म कैसा होगा, हाउ टू रीपैकेज टूरिज्म, हाउ टू रीथिंक टूरिज्म, हाउ टू रीडिस्कवर टूरिज्म, एंड व्हाट काइंड ऑफ एन emerging trends are in travel and tourism, how to adopt the technology in tourism, how to shift according to the traveler expectations. That is something amazing. इसके लिए आपको याद होगा, हमने आपके साथ एक फीस्ट, यानी कि फोरम ऑफ एजुकेटर्स एंड स्किल प्रोवाइडर फॉर टूरिज्म, इसकी भी फ्री मेंबरशिप सबको ऑफर किया। Those are in tourism business, those are in tourism teaching profession. Anywhere you can come to ICSI's web portal and you can just log in over there, and free of cost you can download the book that's called Rethinking Tourism Post Pandemic, and at the same time you can take a free membership of the feast. We gave it to everybody. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आते हैं हम आज की प्रेजेंटेशन के थीम के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, जो भारत का टूरिज्म है, जो भारत की कल्चरल हेरिटेज है, जब हम ये कहते हैं कि टूरिज्म ज्योग्राफी का हिस्सा है, टूरिज्म हिस्ट्री का हिस्सा है, टूरिज्म कल्चर का हिस्सा है, टूरिज्म हेरिटेज का हिस्सा है, टूरिज्म लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं हम भारत में यूज करते हैं, हमारे अलग अलग खान पान, हमारा पहनावा, हमारे तीज त्योहार, हमारे जो कुछ भी हम लेकर चलते हैं, उन सब का अगर हम एक अमेलगमेशन करें, उन सब का एक कॉन्फ्लुएंस करें, तो हमारा एक अच्छा भारत, ब्यूटीफुल भारत, खूबसूरत भारत, अमेजिंग भारत, उसकी हम बातचीत करते हैं। और आपको याद होगा 29 जुलाई 2020 को The Honorable Prime Minister gave the green signal to the new education policy 2020. अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ एक चीजें हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम क्या बातचीत कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि वो पढ़ाया जाए जो हमारे को रोजगार दिलाए, हमें वो पढ़ाया जाए जिससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलें और अपने इतिहास के उन पन्नों में गौरवशाली महसूस करें, जहां पर हमारे भारतीयों ने, हमारे सेनानियों ने, हमारे शूरवीरों ने इस भारत को संजोया, सींचा और इसे आज तक पहुंचाया। So when we talk about it, the new education policy also tells us, let us adopt the approach which is local, traditional, heritage based, culture based, our own civilization, where we are proud of India, that look, we are a part of India, we are born in India। उस सबको प्राउड महसूस कराने के लिए आपको याद होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसी के साथ साथ आप नए कंटेंट्स, किताबों को री रिटर्न, एनसीईआरटी जिस तरीके से किताबों का निर्माण करता है और हिस्ट्री को वी आर राइटिंग इन द करेक्ट वे थ्रू द एनसीईआरटी। डॉक्टर सकलानी जी की पूरी टीम के बहुत बड़े एफर्ट्स हैं, जो डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के, they are amazing people,
It's a pleasure and a privilege to be associated with all of them from time to time for various programs. अगर हम स्कूल एजुकेशन में अपने करिकुलम में जैसे हम जनरल नॉलेज लाते हैं, जैसे हम ज्योग्राफी लाते हैं, सोशियोलॉजी लाते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेके आते हैं और हर एक को एक बेसिक चीजें बताते हैं, तो हम भारत के टूरिज्म के ट्रेजर और पोटेंशियल को अपने स्कूल की किताबों में लेकर जल्द से जल्द क्यों ना आए. We would like to make a humble request to the Ministry of Education, Government of India, and we would also request कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, जब वो 3 T's की बात करते हैं, तो वहां पर वो टूरिज्म की भी बातचीत करते हैं. अगर वो टूरिज्म की बातचीत करते हैं और हम टूरिज्म को वाकई ही एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहते हैं और टूरिज्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रियल सेंस में टूरिज्म भारत की आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक स्थिति में, इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, एंटरप्रेन्योर्स को भी बनाए, स्टार्टअप्स में भी लेकर आए, हर जगह बच्चों का चारों तरफ का माहौल हो, तो इट कम्स टू आवर माइंड, व्हाई डोंट वी थिंक वी हैव टू वर्क आउट ए स्ट्रेटजी कि हमारी किताबों में, हमारी पुस्तकों में, हमारी बुक्स में टूरिज्म स्कूल एजुकेशन के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ए सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. हम ये क्यों कहें कि आप 9th 10th के अंदर वोकेशनल में टूरिज्म ले लीजिए, आप 11th 12th में टूरिज्म ले लीजिए? नो, इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट. अगर आपने 6ठी क्लास से कोडिंग लेकर आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आई थिंक इट्स अ राइट टाइम, इट्स अ राइट ओकेजन. आई थिंक पैंडेमिक ने हम सबको बता दिया है, समझा दिया है कि हमको हर चीज को रीथिंक करना होगा, रीपैकेज करना होगा, रीजुनोवेट करना होगा. व्हाई नॉट वी शुड वर्क आउट ए स्ट्रैटेजी दैट डोमेस्टिक टूरिज्म विद इन इंडिया, व्हाट ऑल इज हैपनिंग in the 6,500 kilometer long coastal line and 3,600 kilometer long Himalayas, and at the same time crisscrossing the length and the breadth. If I'm in Jammu and Kashmir, the temperature is altogether different vis-a-vis in the Chennai. If I go to Lakshadweep, if I go to Andaman Nicobar, if I go to all those places, India is so amazing and so beautiful. It's an unexplored paradise. The time has come. We all have to take into consideration. आप उत्तराखंड को ले लीजिए. मैं बातचीत कर रहा था कुछ समय में अपने एक सहयोगी, अपने एक मित्र रावत जी के साथ, जो उत्तराखंड से हैं, उनके साथ यात्रा करते हुए, ट्रैवल करते हुए मैंने जब बातचीत की. अब आप देखिए उत्तराखंड का कितना पोटेंशियल है, चाहे कुमाऊं में है, चाहे गढ़वाल में है. अगर हम पूरे उत्तराखंड को लेकर चलें, क्यों नहीं हम उत्तराखंड को भी आगे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करके वहां की इकोनॉमी को, वहां की आर्थिक व्यवस्था को, उन सब चीजों को बढ़ाते हैं. समय आ गया है. हम इसलिए ना बच्चों को पढ़ाएं कि पढ़ाना है, हम वो पढ़ाएं जिसकी जरूरत है, हम वो कवर करें जो बच्चों को किसी तरीके से कल रोजगार के लिए तैयार करे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो. लेकिन बच्चों को उस एजुकेशन का कुछ मतलब होना चाहिए. अगर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज को, कैपेबिलिटीज को, टैलेंट को, पैशन को आगे रखा है, तो समय आ गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में पुनः विचार करे. देखिए, जितनी मर्जी हम पॉलिसीज बनाएं, अभी हम माइस इंडस्ट्री की पॉलिसी, फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिसी, फिल्म टूरिज्म की पॉलिसी, फिल्म इंड्यूस टूरिज्म की पॉलिसी, सिनेमैटिक टूरिज्म की पॉलिसी, न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया, हम जितनी मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएं, लेकिन अंत में आपको यह देखना होगा, क्योंकि शिक्षा वो बेसिक प्लेटफॉर्म है. शिक्षा से ही आपका पॉलिटिशियन आता है, शिक्षा से ही आपका ब्यूरोक्रेट आता है, शिक्षा से ही आपका टेक्नोक्रेट आता है, शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है. अगर हम अपनी शिक्षा में पर्यटन को, टूरिज्म को ऑक्सीजन दे दें, तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा. बहुत सारे राज्य
बहुत सारा विकास कर जाएंगे जब हमें दिख रहा है, जब हमें नजर आता है, जब सामने बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि पर्यटन को संभालो, पर्यटन को लेकर चलो, और जब कह रहे हैं देखो अपना देश, द टाइम हैज कम, Ministry of Tourism, Government of India, and Ministry of Education and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, तीनों बैठकर पुनः इस पर विचार करें और ये देखें कि स्कूल की पुस्तकों में पर्यटन इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। साथ ही मैं श्री पीपी खन्ना जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के, और उनकी पूरी टीम से जितने भी लोग हैं पूरे पूरे जुट में जुड़ जाइए और इस कैंपेन को लेकर चलिए। अगर आप भारत का भला चाहते हैं और आप डोमेस्टिक टूरिज्म को रियली आगे लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी आंखें सब कुछ महसूस कर रही हैं 7 अगस्त 1996 दोपहर के 3 बजे ताज पैलेस होटल दिल्ली के अंदर, जहां पर आपकी एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं और जी कांजीलाल जी, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, हम लोग दोनों एज ए गेस्ट दोपहर को बुलाए गए। और एक शख्स प्रदीप सांखला जी, जिनको हमने लूज कर दिया, जिनके पिता कैलाश सांखला, जिन्होंने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया। This all is something very important which we have to take into consideration. All the state governments take it up with the Ministry of Tourism, Government of India, that why not we should have tourism as an integral part of school education. आप टूरिज्म के किसी फैसेट को ले लीजिए, टूरिज्म के किसी सेगमेंट को ले लीजिए, इट फिट्स इनटू एवरीथिंग। आपकी आर्ट में, आपकी क्राफ्ट में, आपकी हेरिटेज में, आपकी कल्चर में, आपकी हिस्ट्री में, आपकी ज्योग्राफी में, आपके म्यूजिक में, डांस में, आर्ट में, किस चीज में हम बातचीत करना चाहें, कुजीन में, कॉस्ट्यूम्स में, डांसेस में, ट्रेडिशंस में, हर चीज में टूरिज्म फिट होता है। व्हाई नॉट एनसीईआरटी? जब आप किताबों को नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं, we have launched the campaign yesterday on India's Republic Day, and we will keep this campaign on कि tourism, domestic tourism should be integral part of India's education ecosystem. It should be integral part. और इस कैंपेन को आगे लेकर चलते हुए कल हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसे वोकेशनल टीचर बनते हैं, बीएड की एजुकेशन होती है, जो टीचर्स बनते हैं एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं बीएड के अंदर जो वोकेशनल टीचर बाद में टूरिज्म के बनते हैं, हॉस्पिटैलिटी के बनते हैं, एविएशन के बनते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के बनते हैं, अरे उन्हें बीएड के अंदर ही आप क्यों नहीं वोकेशनल टीचर के लिए तैयार कर देते थे? अगर एनसीईआरटी डोमेस्टिक टूरिज्म में, एनसीईआरटी डोमेस्टिक टूरिज्म को अपने स्कूल एजुकेशन में लेकर आ रही है और लेकर आ सकती है, तो NCTE, National Council for Teacher Education, we would request you as well, make domestic tourism as an integral part of vocational education in your B.Ed program. कल हम इस पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के जो भी व्यूज हों, आप YouTube पर लिखिएगा। हमारी कैंपेन शुरू है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, IATO, FHRAI, आपके जितने भी टूरिज्म में, जो इको टूरिज्म में है, एडवेंचर टूरिज्म की एसोसिएशन है, सब लोग इकट्ठे होइए। और एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी G20 की कैंपेन है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे शेरपा अमिताभ कांत जी हैं, जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के साथ, राइट, द पर्सन who gave God's own country in Kerala and thereafter he moved on to the center. मुझे आज भी याद है, as a joint secretary tourism, government of India, when he was working with Vinod Duggal ji, both of them together, they were thinking, I met on the number of programs. तो ये एक राइट मोमेंट है कि G20 के कैंपेन के माध्यम से भी हम एनसीईआरटी के माध्यम से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से, और जितने भी लोग हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर
domestic tourism should become the integral part of education. कल हम बातचीत करेंगे वोकेशनल टीचर्स की और डोमेस्टिक टूरिज्म को हमारे बीएड के प्रोग्राम में लाने के लिए निवेदन करेंगे। इन शब्दों के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं और जाते जाते मैं एक और बातचीत कहना चाहूंगा सबको। देखिए, सब कुछ बदल रहा है, ट्रेडिशनल एजुकेशन बदल रही है। ट्रेडिशनल एजुकेशन से हम ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पर आए, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पर आए, डिजिटल बोर्ड से हम आईपैड पर आए, डेस्कटॉप के बाद, और अब हम मोबाइल फोन पर आ गए। दिस मोबाइल फोन इज एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इज इट और नॉट? इस छोटे से यंत्र में सब कुछ है। तो व्हाई नॉट ट्रैवल एजेंट का नाम होना चाहिए ट्रैवल फैसिलिटेटर, टूर ऑपरेटर का नाम होना चाहिए टूर काउंसलर और टूर कंसल्टेंट। जो टूरिस्ट गाइड है, गाइड क्यों, उसका भी नाम चेंज कीजिए, दैट इज अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर, tourist counselor, whatever name you want to give. Let's repackage everything with time, and that's the way we should move. Be proud of India, be proud of India's cultural heritage. अपने भारत का हम सबको गौरव होना चाहिए और हमें ये महसूस करना चाहिए कि this country is so amazing and so beautiful. God has gifted us, God has bestowed so much on India. If we do not take the benefit of that, and if we do not take that treasure, unfold it, repackage it, rethink, regenerate, I think we'll be leaving a lot of people behind. With these words, let's take domestic tourism as an integral part of school education. With that appeal, we close today's program. कल फिर मिलेंगे रात को